الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک حصہ آپ کی فیملی لائف ہے، آپ کی گھریلو زندگی ہے، اور گھریلو زندگی کے اندر سب سے پہلے آپ کی ازواج ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، جن کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ ادب اور احترام کے لحاظ سے بھی اور احکام کے لحاظ سے بھی کہ جس طرح ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجات مطہرات ہیں ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اکرام اور احترام کے لحاظ سے بھی اور احکام کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو آپ کی ازواج ہیں، اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ جو فیملی لائف کا جو حصہ ہے بہت بڑا، وہ ازواج سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 11 نکاح ہیں ان کی ایک وجہ یہی ہے کہ دین کی ترویج اور اشاعت، فیملی لائف، گھریلو زندگی، گھریلو احکامات کی ترویج اور اشاعت۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعدد ازواج یعنی 11 نکاح فرمائے۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی
باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ جو ازواج ہیں ان کا مستقل سب کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ آج سب سے پہلی جو ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں جن کا لقب طاہرہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، جن کا لقب ملکۃ العرب بھی ہے، جو خاتون اول بھی ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلے مسلمان خاتون بھی ہیں، جن کا نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہے۔ آج انشاءاللہ ان کی چند اوصاف کا تذکرہ ہوگا، ان کی آپ علیہ السلام سے رفاقت کا، تعلق کا، محبت کا، قرب کا تعلق کا انشاءاللہ کچھ تذکرہ ہوگا، اور اسی طرح انشاءاللہ پھر آئندہ جمعوں میں اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے تو انشاءاللہ سب کا پھر اسی طرح سے تذکرہ ہوگا، کیونکہ ان کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام کے اگر ہم سیرت بیان کرتے ہیں اور بیویوں کا تذکرہ نہیں کرتے تو سیرت مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ان کی سیرت کا بھی، اور کس طرح انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ نبھایا، اور کس طرح ہر مشکل اور آسانی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو سیدہ خدیجہ بنت خویلد 4 پشتوں میں چوتھی پشت میں جا کے ان کا نسب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی قریشی خاندان سے ہیں، بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی سے آ کے پھر آپ علیہ السلام کا اور سیدہ خدیجہ کا نسب، آپ کے اجداد جو ہے وہ آگے سلسلہ نسب ویسے ہی ہے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی آخر تک۔ تو آپ علیہ السلام کا قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور آپ کے کہہ لیں کہ ایک قسم کے قریشی خاندان سے تعلق ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑی صفات عطا فرمائی، خوبیاں عطا فرمائی، اور ان کی زندگی کے اندر بہت سارے سبق ہیں، خاص کر سیدہ خدیجہ کی جو زندگی ہے رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، ان کی زندگی میں بہت سارے سبق ہیں پریکٹیکل لائف میں، ہمارے لیے، خواتین کے لیے، ہماری گھریلو خواتین کے لیے، کہ گھریلو خاتون کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ ویسے تو بڑی مالدار خاتون تھی، آپ کے آباء و اجداد بڑے مال و ثروت والے تھے، آپ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک سیدنا ہند ابو حالہ جن کی کنیت تھی، ان سے نکاح ہوا، ان سے 2 اولادیں تھی آپ کی، ہند اور حالہ۔ اس کے بعد پھر آپ کا نکاح عتیق بن عائد مخزومی، ان سے نکاح ہوا آپ کا، ان سے بھی آپ کی ایک اولاد تھی۔ تو ان دونوں کے انتقال کے بعد پھر آپ کا جو وہ نکاح کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گی، اپنی جو وہ زندگی گزاریں گی، اللہ اللہ کریں گی، عبادت کریں گی، تجارت کریں گی، اور نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بڑے رشتے بھی آپ کے آئے، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ انکار ایسے نہیں ہو رہا، اللہ کا ایک سسٹم ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا، یہ ہماری طرف سے ہو گیا، پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے ایک مقام دینا تھا آپ کو، اللہ نے آپ کو ایک بڑے گھر میں بھیجنا تھا، آپ کا ایک کائنات کے اندر ایک مقام اللہ نے بنانا تھا۔ تو اللہ کی شان، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی شوہرے تھے، آپ بھی اپنے قوم میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، نبوت سے پہلے ہی آپ بڑے پاک باز تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام۔ پھر آپ تجارت بھی کی، آپ نے مزدوریاں بھی کی، کہ میں نے، آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرارین مکہ، یعنی کہ مکہ کے جو چند ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر مزدوری کی۔ پہلے جیسے ہمارے چھوٹے بچپن کے زمانے میں جب پیسے چلا کرتے تھے کہ 4 آنے، 8 آنے، 16 آنے کا 1 روپیہ،
اور 8 आने का आधा, जिसको 50 पैसा कह लें, गालबन यही था। तो उससे पहले टके, पैसों से पहले भी टके चलते थे। इस तरह छोटी छोटी करेंसियां बढ़ती बढ़ती आती। तो फरमाया कि चंद जो टके थे, मामूली से रकम थी, उसके बदले में बकरियां चराई। और ये आपने फरमाया कि सारे नबी ऐसे ही मजदूरी मेहनत बकरियां चराया करते थे। तमाम मामिन नबीन इल्ला वहुवा यरअल गनम, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने बकरियां न चराई हो। खैर, आप अलैहिस्सलाम तिजारत भी करते थे, हल्की फुल्की बकरियां वगैरह भी चराते थे, काम काज करते थे। आपकी अमानतदारी के चर्चे थे, आपकी अमानतदारी के, सदाकत के, नबूवत से पहले ही चर्चे थे। और इधर भी ये मलिकतुल अरब थी, ये भी बड़ी मालदार खातून थी। आप जो है वो कह लें कि एक सबसे बड़ी एक्सपोर्टर थी। आपके बड़े जो है वो तिजारती काफले यमन और शाम को जाया करते थे। और बल्कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जितना सारे मक्का के ताजरों का माल होता था, इतना आप अकेली का माल होता था, जो आप एक्सपोर्ट किया करती थी, बाहर भेजा करती थी। तो अल्लाह ने आपको इतनी वसी तिजारत दे रखी थी। आपने जो है वो आप अलैहिस्सलाम से पैगाम भिजवाकर उनके साथ मुआहदा किया कि आप हमारे साथ काम करें, हमारे साथ। जाहिर सी बात है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तिजारत फरमाते थे, तो आपने कबूल फरमा लिया, उनके साथ तिजारत करने को कबूल फरमा लिया। और आपने सईदा खदीजा, माल इनका, मेहनत आप अलैहिस्सलाम ने फरमानी है। तो खैर, आपस में मामला तय हो गए, जो भी मामला हुए परसेंटेज पर हुए या जो भी तय हुआ, तय हो गए। सईदा खदीजा ने अपने गुलाम जो मैसरा था वो भी उनको साथ कर दिया कि आपने रास्ते में, सफर में इनका ख्याल रखना है, इनको हेल्प करना है, जो भी जिस तरह साथ गुलाम भेज दिया। अब ये चले गए और अल्लाह की शान, जब ये तिजारत के लिए निकले और गए और वहां पे तिजारत की, अपना माल बेचा, अल्लाह ने काफी नफा दिया। फिर वो और भी रास्ते में फिर जो वो राहिबों से मुलाकातें हुई। फिर आप अलैहिस्सलाम रास्ते में जब सफर कर रहे थे तो एक दरख्त के नीचे बैठे, तो एक राहिब दौड़ता हुआ आया, उसने आपका तारुफ पूछा और कसम उठा के कहने लगा कि इस दरख्त के नीचे ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम बैठे थे, उनके बाद से इतने 100 साल गुजर चुके हैं, कोई इस दरख्त के नीचे नहीं बैठा। और उसने अपनी जो इल्म था अपनी किताबों का, उसके मुताबिक बताया कि अल्लाह आपको नबूवत अता फरमाए। तो खैर, ये सारे मामला पेश आते रहे, वो गुलाम देखता रहा। और रास्ते में जो है वो जब कोई ऐसी धूप या कोई ऐसी जगह आती तो ऊपर बादल साया कर लेते थे। और फिर आपकी गुफ्तगू, आपका तहम्मुल, आपके बर्दाश्त, ये सारी चीजें वो नोट कर रहा था। फिर जब आप तिजारत करके वापस आए तो अल्लाह ने नफा भी इतना दिया कि पहले से कहीं गुना ज्यादा नफा अता फरमाया। जाहिर सी बात है, अब ये भी हो सकता है कि पहले जो जाने वाले तो हो सकता है उस दर्जे के ईमानदार ना हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम की शान तो थी ही थी, वो आपकी बरकत से अल्लाह ने इतना नफा अता फरमाया, इतना नफा अता फरमाया। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर दौर में कोई ना कोई थोड़ा बहुत डंडी मार तो होता ही है। आजकल भी आप देख लें कि लोगों पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई ईमानदार है तो नफा ज्यादा आएगा, अगर कोई डंडी मार है तो फिर नफा वैसे कम आएगा। अभी अपने तो जैसा किसी को बंदा मिल जाए वैसा फिर आगे से रिस्पॉन्स मिलता है। तो मार के अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए और फिर जब मैसरा की दोबारा उसने कारगुजारी सुनाई कि ये तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अमानतदार इंसान हैं, बड़े बुर्दबार इंसान हैं, बड़े मामला फहम इंसान हैं। और जो उसने फिर देखा उसको अपने अल्फाज में बयान किया। और फिर ये भी बयान किया कि जहां पे आप कहीं कोई मुश्किल मरहला आता, कोई धूप आ गई पैसा, तो इनके ऊपर फरिश्ते साया कर लेते थे और ये तो बड़े कमाल के इंसान हैं। तो खैर, अब प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, नफा भी अच्छा हुआ, ऊपर से बंदा भी क्वालिटी का मिल गया, उसमें खूबियां भी बड़ी हैं। और खूबियां होती क्यों ना कि जिसकी बराह रास्त अल्लाह तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह तरबियत, जिसको अल्लाह नबी बनाते हैं, अल्लाह बराह रास्त उसकी तरबियत फरमाते हैं। बराह रास्त बचपन से ही अल्लाह उनके मिजाज को मुख्तलिफ कर देते हैं। बचपन से उनकी नेचर मुख्तलिफ होती है बच्चों से, बाकी बच्चों से। तो बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम और रहमत थी, तो आपने वो सारा मामला किया। तो फिर आप इससे बड़ी मुतासिर भी हुई, आपके तिजारत में भी नफा हुआ, आप मुतासिर बड़ी हुई। तो फिर अल्लाह ने आपके दिल में डाला कि आपने फिर अपने एक सहेली कह लें, नफीसा उनका नाम था,
उसके जरिए से फिर आपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह भेजा कि एक बिजनेस पार्टनर है, चलो लाइफ पार्टनर भी बन जाएंगे, और एक कह लें कि बाकायदा तौर पर एक आपस में बोल चाल मामलात बराह रास्त होंगे। तो खैर आपने पैगाम निकाह भेजा अपने घर वालों से मशवरा करके। तो आप सलाम ने फिर अपने चचा, आपके चचा अबू तालिब हयात थे उस वक्त, उनसे मशवरा किया। आपने अपने करीबी जो आइज़ा थे उनसे मशवरा करके आपने कबूल फरमा लिया। और उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 बरस थी और सईदा खदीजा की उम्र उस वक्त 40 बरस थी। उस वक्त 15 साल का एज डिफरेंस था, लेकिन चूंकि रिश्ता उनके लिए कमाल का था तो इसलिए उन्होंने जब वो रिश्ता भेज दिया। और आपने सलाम को चूंकि अल्लाह ने वो चीजें नहीं रखी होती जो एक आम इंसान में होती हैं, बड़ी को खोद कुरेद जैसे आजकल होता है कि रिश्ते किस तरह ठुकराए जाते हैं, रिश्तों की कदर को किस तरह पामाल किया जाता है, रिश्ते कैसे बच्चों के रिश्ते कैसे ठुकराए जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो महीने की उम्र का भी फर्क आ जाए तो रिश्ते छोड़ देते हैं कि जो लड़की जो है महीना बड़ी है, लड़की महीना बड़ी है, या लड़के की एज ज्यादा है, या लड़की की एज ज्यादा है, या फला मामला, और रिश्तों को मामूली बुनियादों पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। हालांकि रिश्तों की तकद्दुस का तकाजा यह है कि रिश्तों को जिस कदर मुमकिन हो सके जोड़ना चाहिए, जिस कदर। और बसाव का तो कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ पसंद होता है, सारा कुछ मैच कर रहा होता है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, लेकिन रिश्ता इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि फला मामू ने, फूफी ने, चचा ने, फला रिलेटिव ने, फला पड़ोसी ने पसंद नहीं किया तो चलो रिश्ता छोड़। तो रिश्तों की नाकदरी की वजह से आज जो है वो एक कहत है रिश्तों का। बावजूद है कि बेटियां भी बड़ी हैं, बेटे भी बड़े हैं, लड़के भी बैठे हुए हैं, लड़कियां भी बैठे हुए हैं, और लड़कों से ज्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद रिश्ते नहीं हो रहे, क्योंकि हमने नक्श निकालना शुरू कर दिए, हमने खोद कुरेद ज्यादा शुरू कर दी, हमने कीड़े निकालना ज्यादा शुरू कर दिए, हमने रिश्तों के तकद्दुस को पायमाल कर दिया। अल्लाह ने फिर कहत डाल दिया, घर के अंदर रिश्ते होते हुए भी रिश्ते नहीं होते। तो बाहर क्या, तो अब ये एज डिफरेंस देखें कि उधर आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है, 25 बरस, और सईदा की उम्र मुबारक कितनी है, 40 साल। लेकिन अल्लाह ने जोड़ा बना दिया, क्योंकि आपका जोड़ा तो अल्लाह की तरफ से बन गया। अल्लाह ने, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कोई निकाह अपने बच्चियों का अल्लाह की वही और इजाजत के बगैर नहीं किया। मेरे जो रिश्ते हुए हैं, जो मैंने रिश्ते किए हैं, वो अल्लाह की इजाजत के साथ किए हैं। अल्लाह की तरफ से जब तक हुक्म नहीं आया रिश्ता नहीं। तो खैर आपका निकाह हो गया, और ये जो है वो निकाह बेसिकली क्या होता है, इजाबो कबूल होता है। इजाबो कबूल होता है यानी कि जिस तरह प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रपोज एक करता है दूसरा कबूल करता है, तो इस्लाम में भी यही तरीका है, प्रपोज करना और कबूल करना, लेकिन उसमें तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक प्रपोज वो होता है जो आप फैमिली की रजामंदी के साथ अच्छे दीनी माहौल में करें, और एक प्रपोज वो होता है जो आजकल आप दुनियावी माहौल में देख रहे हैं, कहीं पे भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी जो है वो हुल्लड़बाजी में आके जो है वो फूल दे दिया। और एक ऐसे, तो एक ये तरीका होता है हया वाला कि बाकायदा आइजा अकारिब रिलेटिव से मशवरा करके, और बच्ची को इजाजत है कि वो प्रपोज कर सकती है, वो प्रपोज कर सकती है, तभी तो आपने पैगाम भेजा और आपने कबूल फरमा लिया। ये इस्लामी तरीका है कि प्रपोज करने का और एक्सेप्ट करने का, यही निकाह है। तो खैर इजाबो कबूल हो गया। अबू तालिब जो आपके चचा थे, चूंकि खुतबा पढ़ना निकाह में ये मसनून है, इजाबो कबूल ये निकाह के रुकन है। इजाबो कबूल के बगैर निकाह नहीं होता, खुतबे के बगैर निकाह हो जाता है। तो खैर अबू तालिब ने अपने भतीजे के बारे में जब वो चंद कलिमात कहे कि मेरा भतीजा ऐसा है जो बड़ा शरीफ है, जो बड़ा अक्लमंद है, जो बड़ा मामला फाहम है, और इस जैसा कोई नहीं है, चंद अल्फाज कहे और फिर आपने आपका निकाह करवा दिया। उस वक्त चूंकि शरीयत नाजिल हुई नहीं थी, वही जो एक पहले तरीका चला रहा था इजाबो कबूल का, उसके मुताबिक आपका जो वो निकाह हो गया। सैयदा खदीजा से जब तक आपका निकाह रहा, क्योंकि वो उस वक्त ऐसा, यानी कि अभी निकाह के अहकाम भी नहीं आए थे, और अभी तक जो है वो जनाजे वगैरह ये भी अहकाम नहीं आए थे, इसी वजह से सैयदा खदीजा का जो निकाह हुआ वो आम इजाबो कबूल हो गया। और जो आपका
तदफीन हुई, वो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर वैसे ही तदफीन कर दी, उस वक्त तक जनाजे के अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। तो ये आपकी खासियत है या इनफरादियत है बाकी अजवाज से। तो खैर आपका निकाह हो गया, आप के आकद में आ गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके सदके से, आपकी बरकत से जो इस्लाम को तकवीयत दी, और आपकी बरकत से और आपका जो निभा चला वो फिर एक मिसाली था। वो फिर क्या था? मिसाली था। आपकी जो जिंदगी थी वही फिर जमाना था, वही जब 40 बरस को आप पहुंचे, 40 बरस को, और जब आपको नबूवत मिलनी थी, और फिर इसी अरसे में 15 बरस के अरसे में आपकी जो औलादें हुई, आप अलैहिस्सलाम की जो सारी औलादें हैं, आपकी जो 4 बेटियां हैं, सईदा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, सईदा फातिमा, ये सईदा खदीजा से हैं। और इसी तरह आपके जो बेटे हैं कासिम, जिनसे आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम है, वो भी सईदा खदीजा से हैं। इसी तरह अब्दुल्ला, जिनके लक़ब तैयब और ताहिर हैं, ये भी जो है वो सईदा खदीजा से हैं। एक सईदना इब्राहीम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सईदा मारिया क़िब्तिया के बतन से हैं, जो मारिया क़िब्तिया मिस्र के बादशाह, सिकंदरिया के बादशाह की जो बांदी थी, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को गिफ्ट की थी। तो उससे जो है वो सईदना इब्राहीम है, जिनका करीब 18 माह की उम्र में इंतकाल हुआ था। बाकी सारी औलादें जो आपकी सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हैं। तो खैर सारी औलादें आपकी आप अलैहिस्सलाम की सईदा खदीजा से है। और इस बरस में फिर जब आपको नबूवत मिलने का मरहला आता है, फिर आप, जाहिर सी बात है, आपने बड़े नाज़ो नखरे वाली जिंदगी गुजारी थी, लेकिन जब आपके साथ आ गए तब तो फिर अपना सारा कुछ रसूलुल्लाह पर फिदा था कि जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप। और अल्लाह ने हिकमतें रखी थी कि आपकी उम्र छोटी है और सईदा की उम्र बड़ी है, इसमें अल्लाह की हिकमतें थी कि आगे चलकर बड़े बड़े मसाइब के पहाड़ आप अलैहिस्सलाम पर टूटे और बड़ी बड़ी तकलीफें अपनों की तरफ से आई, मुशरिकीन की तरफ से बड़ी बड़ी तकालीफ और ईज़ाएं आए। उस सब सिनेरियो को कंट्रोल करने वाली सईदा खदीजा थी। ये सारा क्रेडिट अल्लाह ने आज जो है वो सईदा खदीजा को दिया, और आप अलैहिस्सलाम की बरकत से सईदा खदीजा को ये क्रेडिट मिला कि इस सब सिनेरियो में जितनी आप तकलीफ, मुसीबतें, गमज़दा, परेशान आते, आप उनको ढारस देते, आप तसल्लियां देते कि आप परेशान। और इसी तरह जब पहली वही आप पर नाजिल हुई, और इसी तरह जब आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा पर जाते, तो सईदा खदीजा आपका खाना लेकर वहां पर जाती, जो कि बड़ा जो है वो मसाफत है, बड़ी मुश्किल मसाफत है, लेकिन वहां पे जाती, हर तरह से आपका साथ दिया। फिर जब पहली वही नाजिल होने लगी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम जिब्राईल अमीन नाजिल हुए। आप अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इक़रा, आपने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। आपने फिर फरमाया इक़रा, फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फिर 3 दफा ऐसा हुआ, तो फिर जब जिब्राईल अमीन ने खुद पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाजिल हुई, जिब्राईल अमीन ने खुद पढ़ी, फिर आप अलैहिस्सलाम को पढ़ाई, फिर आपने पढ़ी। अब ये वो कैफियत थी कि आप अलैहिस्सलाम की अजीब एक वही की कैफियत, बड़ी अजीब कैफियत है। आप अलैहिस्सलाम पर वैसे भी जिंदगी में जब वही नाजिल होती तो बड़ी अजीब कैफियत होती, पसीना आ जाता, कपकपी तारी हो जाती, कांपने लग जाते, और एक अजीब सी कैफियत होती। तो खैर ये आयतें नाजिल हुई, आप पर आपकी अजीब कैफियत थी। आप जब घर तशरीफ लाए तो सईदा खदीजा मिली, फरमाया लक़द खशीतु अला नफ्सी, लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे अपने आप में डर है, ऐसे जैसे मुझे मौत आ जाएगी, मैं जो वो दुनिया से चला जाऊंगा। लक़द खशीतु अला नफ्सी, और आप कांप रहे हैं, सर्दी लग रही है आपको, और फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल दे दो, मुझे कंबल उड़ा दो। कमली वाला आपको जो कहा जाता है ना, काली कमली वाला, वो यही कंबल और चादर है। ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कमली दे दो, मुझे चादर दे दो। तो सईदा खदीजा ने आपको चादर दी, आपको कमली मुबारक अता फरमाई, और फिर माजरा पूछा हुआ क्या, उन्होंने फरमाया ऐसा ऐसा माजरा हुआ है, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो लगता है कि मैं मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा। तो उस वक्त जो सईदा खदीजा ने आपको जिन अल्फाज में तसल्ली दी, उलमा फरमाते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से उनको इल्हाम हुआ, कैसे मुबारक और प्यारे अल्फाज में आपको तसल्ली दी कि क्या फरमाया, वल्लाही ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, कल्ला वल्लाही ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको ऐसे जाया नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ब व तुक़रिज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तक्सिबुल मादूम, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। आप तो बड़ी सिला रहमी करते हैं, आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। व तक्सिबुल मादूम, जो बेचारे
कुछ करते नहीं है, आप उनके लिए करते हैं, आप उनको कमा के देते हैं, आप उनका बोझ उठाते हैं। वतुक़्रिज़ ज़ईफ़, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। वतहमिलुल कल, आप तो बोझ वालों के बोझों को उठाते हैं, उनके बोझों को हल्का करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और लोगों की मुसीबतों में आप उनकी मदद करते हैं। अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आपने परेशान नहीं, सैयदा खदीजा ने आपको तसल्ली दी, आपका धारस बंधाई, आपको हिम्मत दी कि आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। तो ये सैयदा खदीजा थी जिन्होंने कदम कदम पर नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया। यही वजह है फिर नबी अलैहिस्सलाम ने भी आपको मौत तक भुलाया नहीं, मौत तक भुलाया नहीं। हालांकि आपका सबसे पहला निकाह आप जवानी में हैं, ये इससे पता चलता है कि निकाह असल नहीं था, अल्लाह ने अपने नबी की तालीम को आम करना था, तो इसलिए ऐसी औरतों का अल्लाह ने इंतखाब किया। एक समझदार, मामला फहम औरत, बड़ी उम्र की औरत जो सारे सिनेरियो को, सारे मामले को कंट्रोल कर सके। फिर आपके जरिए से अल्लाह ने दीन को आम किया। और फिर अल्लाह के पाक पैगंबर, पहला निकाह आपसे, जब आपके होते हुए अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं किया, आपके होते हुए दूसरा निकाह नहीं किया। आपके बाद फिर आपके निकाह हुए, सैयदा सौदा से हुआ, सैयदा आयशा से हुआ, बाकी अज़वाज से, लेकिन आपके होते हुए आपने कोई निकाह नहीं फरमाया। और जितने निकाह भी फरमाए उसमें हिकमत क्या है? दीन की तालीम। अगर निकाह से मुराद निकाह ही होता या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह को जिनसी तस्कीन की, ख्वाहिश की तस्कीन की होती, वो गर्ज होती, तो सबसे पहला आपका निकाह छोटी उम्र की लड़की से होना चाहिए था। सबसे पहला निकाह आपका किसी बाकरा कवारी खातून से होना चाहिए था। लेकिन सबसे पहला निकाह एक बड़ी उम्र की, 2 दफा जो बेवा हो चुकी है, उस खातून से करके बताया कि नबी अलैहिस्सलाम का और बल्कि किसी भी नबी का मकसद निकाहों से अपनी जिनसी जो है वो ख्वाहिश की तस्कीन नहीं होता, बल्कि दीन की तरवीज और तालीम को आम करना होता है। फिर आपने जब सैयदा आयशा से निकाह हुआ, सैयदा आयशा फरमाया कि मैंने जो है वो किसी औरत पे गैरत नहीं खाई जितने खदीजा पे। औरतों के अंदर और शौकनों के अंदर अल्लाह ने तभी तौर पर थोड़ा सा खिंचाव रखा होता है और एक नेचुरल होता है, इसमें किसी किस्म का कोई बुराई वाली बात नहीं है। और आप अलैहिस्सलाम सैयदा खदीजा के जाने के बाद भी कभी उनके बारे में लफ्ज सुनना गवारा नहीं फरमाते थे। एक दफा सैयदा आयशा ने फरमा दिया कि रसूलल्लाह, आप बड़ी उम्र की खातून थी, आप हर वक्त उनका तस्करा करते रहते हैं, वो तो बड़ी उम्र की खातून थी, उनके जो वो सुर्ख बाछें या सुर्ख रुखसारें ऐसी थी और आप उनको याद करते रहते हैं। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक ऐसा हो गया जैसे किसी गुस्से की हालत में आपका चेहरा होता है कि आप उनके बारे में बात सुनना पसंद नहीं करते। और एक रिवायत में आपने फरमाया कि मैं उसको याद क्यों ना करूं, उसने उस वक्त मुझ पर ईमान लाए जब सारे लोग मेरा इनकार कर रहे थे, सारे मेरा इनकार कर रहे थे। खदीजा ने मेरी बात सुनकर सबसे पहले मुझ पर ईमान लाए, सबसे पहले, और उसके माल ने मेरी और दीन की मदद जितनी की है किसी और ने उतनी मदद नहीं की। और तीसरी बात, मेरी जितनी भी औलाद है वो खदीजा से है, तो मैं उसको याद क्यों ना करूं। और फरमाया खैरु निसाइहा मरियम व खैरु निसाइहा खदीजा, कि अपने जमाने की औरतों में मरियम सबसे बेहतर थी और मेरे जमाने की औरतों में खदीजा सबसे बेहतर थी। और फरमाया अगर तुम इक्तिदा करना चाहते हो तो 4 औरतों का इक्तिदा करो, 4 औरतों का इक्तिदा करो। खदीजा बिनते खुवैलिद, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, फातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया फिरौन की बीवी, आसिया फिरौन, और हजरत मरियम। कि अगर तुम इक्तिदा करना चाहते हो तो इन औरतों का इक्तिदा करो। और फिर आप अलैहिस्सलाम सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत नहीं, बल्कि आपके तशरीफ ले जाने के बाद आपकी जो दोस्त थी, आपकी जो सहेलियां थी, सैयदा आयशा खुद बयान फरमाती है कि जब आप अलैहिस्सलाम घर में कोई बकरी का बच्चा, कोई बकरी ज़बह करते थे तो सबसे पहले सैयदा खदीजा की सहेलियों के घरों में गोश्त पहुंचाते थे। फरमाया एक दफा घर में एक औरत आ गई, बड़ी उम्र की औरत, आप अलैहिस्सलाम से मिली, काफी देर खड़ी रही। आप अलैहिस्सलाम से हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे हैं, हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ऐसे जैसे तो फैमिली मेंबर मिल जाता है इस तरह बातें कर रहे हैं। काफी देर के बाद जब वो चली गई तो मैंने आप अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन थी? फरमाया कि ये खदीजा की एक सहेली थी। जब हम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो ये हम इससे मुलाकात ना कर सके, मक्का में इसका हमारे घर में बड़ा आना जाना था और सैयदा खदीजा से इसका बड़ा ताल्लुक था। आपने फिर इस तरह आपकी कदर की और आपका जो है वो सबसे चहेती हमेशा आपको याद किया। और फिर जब
बड़ी आजमाइश का मक्का मुकर्रमा में एक टाइम आया कि जब सारे के सारे लोगों ने आपका बाइकाट कर दिया, एक सोशल बाइकाट हो गया आपका, आपके पूरे कबीले का बाइकाट हो गया, और आपको शेब अबी तालिब में घाटिया वहां पे मासूर कर दिया कि कोई इनसे बोलेगा नहीं, कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे बंद कर दिया गया कि 3 साल तक मासूर है आप अलैहिस्सलाम। उसमें सईदा खदीजा और अबू तालिब और दीगर आपके फैमिली मेंबर सारे थे। उसी 3 साल के हिसार के दरमियान वहां पे अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, उसके बाद सईदा खदीजा का भी इंतकाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने उस साल को आमुल हुज़्न का साल करार दे दिया कि ये मेरे लिए बड़े गम का साल है, मेरे लिए बड़े गम का साल है। तो ये सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो खातून अव्वल है, जो इस्लाम की सबसे पाकबाज हस्ती हैं, जो इस्लाम की सबसे पहली खातून है, इस्लाम में सबसे पहले दाखिल होने वाली हैं, इस्लाम पर अपना सारा कुछ कुर्बान करने वाली हैं। और बाज़ों ने तो यह भी लिखा, एक दफा आप अलैहिस्सलाम एक जो है वो वादी में तशरीफ ले गए, वहां देखा कोई काफिला आया हुआ है, उसने पड़ाव डाला है, और वो बड़े लागर से कमजोर से लोग हैं, ऐसे जैसे बड़े बेचारे कमजोर, भूख की वजह से, फाकों की वजह से कमजोर हो गए हो। आप अलैहिस्सलाम जब आए तो बड़े परेशान। सईदा ने पूछा, या रसूलल्लाह खैरियत है, आप परेशान है? और मैं कि मैंने वहां से ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बेचारे कमजोर और लागर और बिल्कुल जैसे कुछ खाया ना हो ऐसे हैं। फरमाया आप सारे कुरैश के लोगों को जमा करें। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। जब थोड़ी देर के बाद आप तशरीफ लाए तो आपने क्या देखते हैं कि एक ढेर लगा हुआ है, एक है माल दौलत का ढेर लगा हुआ है, इतना ढेर कि आप अलैहिस्सलाम उसके पीछे छुप जाएं, इतना ढेर सईदा ने लगाया। और फरमाया या रसूलल्लाह, मैं सबको गवाह बनाकर कहती हूं कि ये सारा माल आपका है, जहां इसको मर्जी आप चाहें खर्च फरमा लें। तो ये कुर्बानियां हैं सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, तय्यबा है, ताहिरा है। ताहिरा इनका लक़ब इसलिए है, उलमा फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत के अंदर भी जब शिर्क का दौरा था, बुतों की पूजा होती थी और हरम पाक के अंदर जो है बुत रखे हुए थे, लोग उनके पुजारी थे, उस वक्त भी उन्होंने कभी किसी बुत की पूजा नहीं की, इसलिए इनको ताहिरा कहा जाता है। अल्लाह ने इनको शिर्क से, कुफर से पाक रखा। और मलिकतुल अरब इनको कहा जाता है कि अरब की मलका थी, अल्लाह ने ऐसा आपको माल दौलत और तिजारत अता फरमा रखा था। तो बाहर क्या ये सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुख्तसर और चंद चीजें जो हमारे लिए इसमें सबक की हैं। एक तो सईदा के पहले 2 निकाह हुए, तीसरा निकाह आप अलैहिस्सलाम से किया। हमारे आजकल के जमाने में जब किसी औरत का खामिद फौत हो जाता है, उसके बाद अगर वो निकाह का सोचती है तो लोग ताने मारते हैं। लोग डिवोर्स किसी को हो जाती है, वो निकाह का सोचती है तो लोग ताने मारते हैं। थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाए, 30-35 के हो जाए, वो कहते हैं अब तो इस उम्र में शादी करेगी। अब सईदा की उम्र कितनी है? 40 बरस है, आप शादी कर रही हैं, कोई आर नहीं, कोई ऐब नहीं, सबसे बड़ी कायनात की हस्ती से शादी कर रही हैं, और पहली औलादें भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारे मुआशरे ने इसको आर बना दिया। लेकिन खुदा ना खास्ता वही अगर कल को ज़िना में मुब्तला होगी, फिर वो किसको जवाब दे? तो ये कोई ऐब नहीं है। अगर किसी का खामिद फौत हो जाए, अगर और वो निकाह करना चाहती है अपनी पाकबाजी को बचाने के लिए, तो उसको इख्तियार देना चाहिए। भाइयों को, अपने जो है वो ससुर को, अपने जो उसके जो है वो सरपरस्त हैं, उनको इख्तियार देना चाहिए कि तू जहां चाहे निकाह कर, हम तेरा निकाह का इंतजाम करवाते हैं। नहीं तो उसको दबाएं कि तू बच्चों का ध्यान कर, तो फिलहाल बच्चों का ख्याल भी करे, लेकिन अपनी इज्जत का भी ख्याल करे। इसी तरह किसी की बीवी फौत हो जाती है, औलाद बड़ी होती है, तो वालिद को निकाह नहीं करने देते, वालिद को निकाह नहीं करने देते, वालिद को कि नहीं दोबारा निकाह नहीं, आप बूढ़े हो गए, फुला हो गए। हालांकि इस्लाम का तरीका क्या है? इस्लाम का बड़े बड़े सहाबा से ये मनकूल है कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरे जिंदगी के चंद साथ बाकी हैं और चंद साथ, और मैं बेनिकाह हूं, तो मैं निकाह करके मरने को तरजीह दूंगा। यहां पर बेचारा 50-60 साल में अगर किसी की बीवी फौत हो जाती है, वो कहते हैं जब ऐसे ही जिंदगी गुजारो बस। अल्लाह ने इंसान को जोड़े के साथ, अपने जोड़े के साथ भेजा है, खलकनाकुम अज़वाजा बनाया है, बल्कि बच्चों का हक है। जिस तरह वालिदैन ने उनके परवरिश करके बड़ा करके उनके निकाह का इंतजाम किया, एक स्टेज पे आके औलाद की भी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मां फौत हो गई है तो अपने बाप का निकाह करें, अपने बाप का निकाह करें। और ये हमारी शरीयत की तालीम है, क्योंकि हमारी शरीयत दाएं बाएं मुंह मारने की इजाजत नहीं है। निकाह करो आप,
निकाह। और दूसरी बात, सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने कारोबार करके बतलाया कि एक खातून जो है वो बिजनेस लेडी या बिजनेस वूमेन हो सकती है, वो कारोबार कर सकती है, एक हुदूद के अंदर रहते हुए, एक दायरे के अंदर रहते हुए, अपनी इज्जत इस्मत का लिहाज करते हुए, अपनी पर्दादारी का लिहाज रखते हुए उसको कारोबार की इजाजत है, वो कर सकती है। इसमें कोई आड़ वाली बात नहीं है कि कह देते हैं ये फलां औरत की कमाई खाता है, इसमें कोई शक नहीं। औरत का नानो नफका मर्द पर वाजिब है, मर्द पर है, लेकिन अगर वो कारोबार करना चाहे तो कर सकती है। और यह भी पता चला कि बच्ची वाले भी किसी को निकाह का पैगाम भेज सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे हैं, औरतें बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो गई, रिश्ते नहीं आ रहे, खुद नहीं जाते। क्यों? कि बच्ची वाले नहीं जाते। बच्ची वाला भी जा सकता है, बच्ची खुद भी कह सकती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी की बच्ची जवान हो चुकी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, अगर कहीं पर रिश्ता नजर आए तो खुद चल कर जाए, उनसे रिश्ते की बात करें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। निकाह का पैगाम भेजना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें सबक मिलता है, लेकिन ये है कि सारी की सारी चीजें शरीयत के दायरे के अंदर रहते हैं, शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें इन हजरात की जिंदगियों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।